Assalamu alaikum. Hi, students and friends. This is your host and teacher Sayyid Ayazuddin Haider. I'm continuing my video session for past papers, and I was doing O-level past papers. Syllabus code is 5070. This time I have selected variant 21 of May-June 2024. It's paper 2 theory, and it's of 1 hour 45 minutes. You have to answer on the question paper, and you have to answer all the questions. There are no choices in this question. You can use calculator. The total mark for this paper is 80. Periodic table is printed in the question paper. So let's start the paper. So here's question number 1. Choose from the following substances to answer the questions. So we have substances carbon, chlorine, glucose, hydrated copper 2 sulfate, iron, magnesium sulfate, methanoic acid, methanol, nickel, silicon 4 oxide, vanadium 5 oxide. Each substance can be used once, more than once, or not at all. State which substance A is a catalyst in the Haber process. This is something which you have to learn by heart. It's iron. So I will write iron here. B has a giant covalent structure. So if you look at the list, here it is. It's silicon 4 oxide. So we will write silicon 4 oxide. C changes from a blue solid to a white solid when heated. It must be hydrated copper 2 sulfate. Hydrated copper 2 sulfate is blue in color, and if you heat it, it will turn to white as it loses water, which means it becomes dehydrated. So I will write hydrated copper 2 sulfate here. D removes taste and odors during the treatment of domestic water supply. If you look at the list, here's the top carbon. Carbon is used to remove taste and odor. So I will write carbon here. Part E has the empirical formula CH2O. Empirical formula is the simplest formula. And it's of compounds. So you can have empirical formula of glucose here, magnesium sulfate, methanoic acid, methanol, even silicon 4 oxide, vanadium 5 oxide. You can have empirical formula of these. So glucose, the formula of glucose is C6H12O6. If you write the empirical formula, it will become CH2O. So I think this must be the right answer for your convenience. I'm looking at the other choices. Magnesium sulfate, MgSO4. It must have same empirical formula. What about methanoic acid? It's HCOOH or H2CO2.
so it can't be the correct answer. Methanol, CH3OH or CH4O. Silicon 4 oxide, SiO2. Same. Vanadium 5 oxide is V2O5. So glucose must be the right answer for this one. ग्लूकोज का आप देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 ही है, सो आई विल राइट ग्लूकोज है. नंबर 2, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 reacts with, question number 2, calcium carbide CaC2 reacts with water to form a flammable gas ethine C2H2 and calcium hydroxide. A, construct the symbol equation for this reaction. इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं. इसमें आपके पास रिएक्टेंट्स के फॉर्मूले दिए हुए. कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2, तो आप लिख दीजिए CaC2 प्लस वाटर. वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O, और ये प्रोडक्ट बता रहा है फ्लेमेबल गैस बना रही है. इसका फॉर्मूला इसने दिया है C2H2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कैल्शियम ग्रुप 2 में इसकी +2 वैलेंसी होती है. हाइड्रोक्साइड आयन इज OH, तो यहाँ पर फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लेते हैं CaOH. ये +2 है, ये -1 है, तो चार्ज इग्नोर कर दीजिए. चार्जेस 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा. अब इन वैल्यूज को आप स्वैप कर दीजिए, सो यू विल गेट CaOH होल ट्वाइस. तो यहां लिख दीजिए आप +CaOH होल ट्वाइस. ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा. पार्ट बी, कैल्शियम कार्बाइड इज आयोनिक, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द कार्बाइड आयन. कार्बाइड आयन का ये फॉर्मूला प्रेडिक्ट करने के लिए कह रहा है. यानी कि C2, कैल्शियम कार्बाइड में C2 इज द कार्बाइड. अब ये फॉर्मूला आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? ये आपके पास CaC2 है. ठीक है, इसको हम 1 ले लेते हैं. यहाँ पे 1 एटम है, और कार्बाइड का 2 है. ठीक है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं कार्बाइड के, तो मैंने 2 ले लिए एटम्स. ठीक है, अगर इसको आप स्वैप कीजिए तो ये इस तरह बनेगा 1, और यहाँ पर 2 आ जाएगा. 2 कैल्शियम पे चार्ज, +2 हो जाएगा कैल्शियम पे, और कार्बन पे -1 आएगा. ये कार्बन पे -1 आ रहा है, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है C2, तो C2 पे चार्ज पूछ रहे हैं. ये C2 इज द कार्बाइड आयन. कार्बाइड आयन इज C2, तो C2 पे आप चार्ज जब आप बताएंगे तो -2 हो जाएगा. तो C2 का आप चार्ज लिख देंगे C2 -2. डोंट राइट -1. पार्ट सी, फिगर 2.1 shows द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ इथाइन. ये डिस्प्लेड फॉर्मूला दिया हुआ है इथाइन का. इथाइन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई इथाइन इज अ हाइड्रोकार्बन. ये पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं इथाइन को? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. नंबर 2, सजेस्ट व्हाई इथाइन इज अनसैचुरेटेड. अगर आप इथाइन को देखें गौर से, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है मुझे. कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है. ये कह रहा है कि इथाइन जो अनसैचुरेटेड क्यों है. अब आप लिखेंगे डज नॉट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. डज नॉट कंटेन
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें और क्या आप स्टेटमेंट दे सकते हैं? इसमें आप दूसरा स्टेटमेंट जो दे सकते हैं वो कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, ये भी लिख सकते हैं आप, कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। Number 3, aqueous bromine reacts with ethyne. Predict the color change that happens during this reaction. Bromine is used to check the unsaturation and जो कलर चेंज होता है उसमें ऑरेंज या ब्राउन से कलरलेस हो जाता है, तो आप लिख देंगे ऑरेंज और ब्राउन टू कलरलेस। Number 4, draw a dot and cross diagram to show the electronic configuration in a molecule of ethyne. Show only the outer shell electrons. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन में। ये हमारे पास फॉर्मूला है इथाइन का, ये फॉर्मूला मैं नीचे बना लेता हूँ तो हमें आसानी हो जाएगी इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने में। ये H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H की शो कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन को हम डॉट से शो कर लेते हैं और हाइड्रोजन को हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। याद रखिएगा हर बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा होता है, तो इसका मतलब है दो कार्बन के दरमियान जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर्कल बना लेते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, सी हो गया, दूसरा सी हो गया, ये हाइड्रोजन आ गया राइट साइड पे एंड दिस वन हाइड्रोजन हियर। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे क्रॉस से, ये हो गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट कार्बन? फॉर द राइट वन 1 2 3 4, लेफ्ट वाला कार्बन 1 2 3 4। तो ये इसकी फाइनल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हो जाएगी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट डी। द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथाइन इज शोन। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। D1 में क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कॉमन स्टेटमेंट्स आ जाएंगे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के। बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स इन एनर्जी या एनर्जी एब्जॉर्ब टू ब्रेक बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक बॉन्ड। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट आप देंगे बॉन्ड मेकिंग का। बॉन्ड मेकिंग जो है वो एक्सोथर्मिक है। बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक और एनर्जी रिलीज्ड ऑन मेकिंग बॉन्ड्स। ये आपको यहां पर सिर्फ 1 मार्क्स मिलेंगे। फाइनल स्टेटमेंट आप बताएंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, इस पर आपको दूसरे मार्क मिलेगा, जो कि आप लिखेंगे मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। अगर ये एंडोथर्मिक होता आप लिख देते मोर एनर्जी एब्जॉर्ब देन रिलीज। पार्ट 2 पे आए थे, कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम इन फिगर 2.2 फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथाइन। लेबल द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, enthalpy change of the reaction delta H, activation energy EA।
ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस पे आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, वाई एक्सिस पे आपके पास एनर्जी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो प्रोडक्ट मस्ट बी एट द लो एनर्जी स्टेट देन द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट आपका आ जाएगा, ये लाइन होगी रिएक्टेंट की और ये होगी लाइन प्रोडक्ट की। और एक एनर्जी हम शो करेंगे, विल शो द एनर्जी हम, ये हो गया आपका एनर्जी हम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ई ए जो है इसमें वो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, इसको आप ई ए लिखेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एनर्जी चेंज है डेल्टा एच वो होगा ये डेल्टा एच। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट शो कर देंगे। रिएक्टेंट क्या है आपके पास, 2C2H2, 2C2H2 प्लस 5O2। और आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट साइड पे 4CO2 प्लस 2H2O। ये इस तरह आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, aqueous ammonium nitrate decomposes when heated to form nitrogen। ये रिएक्शन है, NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। A, a 25 centimeter cube sample of 0.133 mole per dm cube NH4NO2 is completely decomposed। Calculate the volume of nitrogen formed measured at RTP, which is room temperature and pressure। Give your answers to two significant figures। हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना। फॉर दिस आई नीड द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अमोनियम नाइट्रेट की दी हुई है, इससे मैं मोल्स निकाल लूंगा अमोनियम नाइट्रेट के। चूंकि दोनों का रेशियो 1:1 है, सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट के, अमोनियम नाइट्राइट के, सॉरी, मोल्स ऑफ ammonium nitrate which is NH4NO2। NH4NO2 is ammonium nitrite। 0.113 sorry 0.133 mole per dm cube means 1000 centimeter cube contains 0.133 moles। Therefore 25 centimeter cube contains x moles। So x हो जाएगा is equal to 25 मल्टीप्लाई बाय 0.133 और इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से। ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय 0.133 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 0.003, 0.00325 मोल्स आ जाएंगे। मोल रेशियो लिख लेते हैं, NH4NO2 और ये N2। 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.03325 मोल्स एक्स मोल प्रोड्यूस करेगा, जो कि सेम हो जाएंगे। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर डीएम क्यूब में चाहिए तो हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 24 dm cube at RTP। RTP is रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ N2 मोल्स इनटू
24। सो मोल्स मेरे पास है 0.003325 मल्टीप्लाई बाय 24, और आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.0798। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.08 DMQ। पार्ट बी पे मूव करते हैं। पार्ट बी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा हमें पता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इंक्रीज होता है। तो सिंपली अभी ये स्टेटमेंट तो लिख देंगे, रेट इंक्रीजेस। एक स्टेटमेंट तो ये आ गया आपका। आप इसके बाद मजीद क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? मजीद स्टेटमेंट में आप लिखेंगे बिकॉज पार्टिकल्स ने ज्यादा एनर्जी गेन की, पार्टिकल्स हैव मोर या गेन्ड पार्टिकल gained kinetic energy because particles have more or gained kinetic energy। दूसरा स्टेटमेंट आप क्या दे सकते हैं इसमें? दूसरा स्टेटमेंट आप रेफर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का, या फिर सक्सेसफुल कोलिजन की बात कर सकते हैं। एंड मोर पार्टिकल्स हैव मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स। और मोर पर यहाँ पे आप प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स की आप बात करेंगे, प्रोपोर्शन या परसेंटेज की आप बात करेंगे। और हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दीजिए आप, प्रोपोर्शन दे दें आप, या फिर मोर पार्टिकल्स लिख लें आप। हैव काइनेटिक एनर्जी, हैव एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू, हैव एनर्जी इक्वल टू और हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हैव एनर्जी इक्वल टू और हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा रेट पे? डेफिनेटली रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट आपका ये आ गया, रेट डिक्रीजेस लिख देंगे आप। दूसरा आप क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? रेट डिक्रीजेस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन इज स्लोअर, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये तो ऑप्शन वाले स्टेटमेंट हो गया पहला वाला। वजह क्या है? क्यों यहां पर कम पार्टिकल्स हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज देयर विल बी फ्यूअर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर बात खत्म नहीं होगी। ये दो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप बात खत्म नहीं करेंगे, एक स्टेटमेंट आपको और देना होगा। यहां पर आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा? फ्यूअर कोलिजन हो जाएंगे, देयर विल बी फ्यूअर कोलिजन्स पर सेकंड, देयर विल बी, कोलिजन कम हो जाएगा, कोलिजन्स पर सेकंड। या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की बात करते हैं, और लोअर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और लोअर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पार्ट डी पे आ जाते हैं। वन वे टू मेजर द pH of aqueous ammonium nitrite is to use a pH meter।
एक तरीका है पीएच मालूम करने का एक्वस अमोनियम नाइट्रेट का, कि हम पीएच मीटर यूज कर लें। डिस्क्राइब वन अदर वे टू मेजर द पीएच ऑफ एक्वस अमोनियम नाइट्रेट। डेफिनेटली दूसरा तरीकेकार हमारे पास हो सकता है जो सिलेबस में आपके है, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब स्ट्रेट अवे लिख दीजिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। एक स्टेटमेंट और आएगा, आपको मैच करना पड़ेगा कलर जो ऑब्टेन होगा विथ अ पीएच कलर चार्ज। तो आप लिखेंगे मैच द कलर ऑब्टेन। यहां पर कलर ऑब्टेन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में विथ अ पीएच कलर चार्ट। इससे आप कंपेयर करेंगे। Moving to next question, which is question number 4. Potassium iodide Ki is an ionic solid composed of a lattice of potassium ions and iodide ions. A, explain why potassium iodide has a high melting point. Potassium iodide का high melting point क्यों है? Straight away यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है। Strong attraction की आप बात कर देंगे। Strong attraction between positive and negative ions. Between positive and negative ions. पार्ट बी पे आ जाते हैं। Describe how potassium atoms and iodine molecules react to form potassium ions and iodide ions. Use ideas about electron transfer. यहाँ पर पोटेशियम एटम जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और आयोडीन मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पोटेशियम इज अ मेटल ग्रुप 1 में, और आयोडीन जो ग्रुप 7 में, इट्स अ नॉन मेटल। तो लिख देते हैं हम पोटेशियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन, आयोडीन मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसका कंप्लीट आंसर होगा नंबर सी। प्रिडिक्ट दी products at each electrode during the electrolysis of concentrated aqueous potassium iodide. पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki इज गिवन, और ये कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है। तो एनोड पे कंसंट्रेटेड में हमें आयोडीन मिल जाएगा। तो आप एनोड पे बता दीजिए I2 लिख दीजिए, या फिर आयोडीन लिख दीजिए। कैथोड पे यू विल नेवर गेट potassium. The reason is that potassium is highly reactive metal. So you will get hydrogen H2 गैस, या फिर हाइड्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। पार्ट डी पे आ जाते हैं। Aqueous potassium iodide reacts with aqueous acidified potassium manganate 7. Suggest the color changes that happen during this reaction. पोटेशियम आयोडाइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्टेंट है, जबकि पोटेशियम मैग्नेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनिशियल जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो होगा पोटेशियम मैग्नेट के। तो पोटेशियम मैग्नेट का कलर पर्पल होता है, और पोटेशियम आयोडाइड का जो है वो कलरलेस होता है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड जो है ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस सामने वाले को जब रिड्यूस करता है तो ये चेंज हो जाता है ब्राउन में, कलरलेस टू ब्राउन। और पोटेशियम मैग्नेट जो है इसका कलर होता है पर्पल, पर्पल या पिंक। और ये सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज करता है इसका कलर चेंज हो जाता है कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस या डीकलराइज। तो स्ट्रेट अवे हमारे पास इनिशियल कलर आपके पास आ जाएगा ये पर्पल, फाइनल कलर आ जाएगा ब्राउन। सो पर्पल टू ब्राउन लिख देंगे आप, पर्पल टू ब्राउन। पार्टी the ionic equation for the reaction between aqueous potassium iodide and aqueous chlorine is shown. ये 2I minus aqueous plus Cl2 aqueous gives I2 aqueous plus 2Cl minus aqueous. Explain in terms of electrons why this reaction involves both oxidation and reduction. ये आप देख सकते हैं आयोडाइड माइनस से 0 पे आ रहा है, यहाँ पे 0 है, तो चार्ज नहीं इसका मतलब 0 है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है I माइनस और
आयोडाइड, ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसी वजह से यहाँ पे जीरो चार्ज आया। व्हाट अबाउट Cl2? Cl2 पे जीरो है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो आप लिखेंगे क्लोरीन, Cl2 और क्लोरीन reduced because it gains electron या gain electrons। Question number 5. When a sample of zinc sulfate is heated in a closed system, an equilibrium mixture is formed. This is the reaction equation: ZnSO3 S reversible sign ZnO S plus SO2 G. The forward reaction is endothermic. A. The temperature of the closed system is increased and the pressure is kept constant. Predict how the position of equilibrium of this reaction is affected. Explain your answer. So it's mentioned in the question that forward reaction is endothermic. So I will write delta H positive here, and on the reactant side you have delta H negative. So definitely if you will increase the temperature, the equilibrium will shift to the right hand side or to the product side. Position of equilibrium will shift to right hand side. Now what else you will write? You can write forward reaction is endothermic or backward is exothermic. Forward reaction is endothermic, ये दूसरा स्टेटमेंट आप दे दीजिए, और बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। इसमें आप ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, टू एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, टू एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी। पहला मार्क आपको मिल जाएगा, पोजीशन बता देंगे आप इक्विलिब्रियम। फिर सेकंड मार्क आपको मिलेगा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन में बताएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, या फिर बता दीजिए एब्जॉर्ब करना चाहता है थर्मल एनर्जी, या फिर रेफर कर दीजिए बैकवर्ड रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक है। पार्ट बी, the pressure of the closed system is decreased and the temperature is kept constant. Predict how the position of equilibrium of this reaction is affected. Explain your answer. प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सिर्फ गैसेस पे। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो उस डायरेक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम जिस डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वो उस डायरेक्शन मूव करेगा जहां पर गैसेस ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड पे मूव करेगा डिक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपके पास हायर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं। इनफैक्ट यू हैव 1 मोल ऑफ गैस ऑन द राइट हैंड साइड एंड 0 मोल ऑफ गैसेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रिएक्टेंट। 0 मोल हो गया और ये हो जाएगा आपका 1 मोल। लिख दें आप, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू राइट, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टू प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड। सेकेंड स्टेटमेंट, रेफर, रेफर कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स
मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन either side of the reaction. यानी कि राइट हैंड साइड पे यू हैव हायर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास लेस नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएंगे। ये आप इनमें से कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। पार्ट सी, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 25.5 ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड। मैं रिएक्शन इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ZnSO3 gives ZnO plus SO2। ZnSO3 ZnO प्लस SO2। स्टेट भी लिख देते हैं, यहाँ पे गैस स्टेट है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। मास की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू दी MR ऑफ बोथ जिंक सल्फाइड एंड जिंक ऑक्साइड। MR हमें चाहिए होगा ZnSO3 और ZnO का। जिंक सल्फर ऑक्सीजन देख लेते हैं, वेयर इज जिंक। जिंक यहाँ पर है, इसका 65 है। सल्फर, हेयर इज सल्फर, इसका 32 है AR। ऑक्सीजन इसका 16 है। तो ये कर लेते हैं हम, 65 मल्टीप्लाई बाय 165 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके हो जाएगा 48। इसको ऐड कर लेते हैं, 65 प्लस 32 प्लस 48, 145। ZnO 61 मल्टीप्लाई बाय 65, 65 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 हो जाएगा। 65 प्लस 16 81। अब ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ गई है, हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे। ये ZnO है और ये ZnSO3 और ये ZnO है। सो 145 ग्राम्स, 145 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 81 ग्राम्स ZnO। देयरफॉर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 25.5, 25.5 ग्राम प्रोड्यूसेस X ग्राम ZnO। इसका आंसर आ जाएगा, क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 25.5 डिवाइडेड बाय 145। और ये हो जाएगा 14.244। इसका आंसर आएगा 14.244 grams. This will be the final answer. Moving to next part, D. Zinc oxide reacts with both aqueous sodium hydroxide and dilute hydrochloric acid, but sulfur dioxide only reacts with aqueous sodium hydroxide. Explain why. 2 मार्क्स का है, दोनों बता दीजिए आप कौन से टाइप ऑफ ऑक्साइड है। रेफर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, बता दें इनमें से कौन कौन सा वाला ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक है, लिख दें आप, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इसी वजह से ये दोनों से रिएक्ट कर रहा है। एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और अल्कली से भी रिएक्ट कर रहा है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड है। E. Solid zinc sulfide reacts with dilute nitric acid to give sulfur dioxide gas, an aqueous zinc salt, and a colorless liquid. Construct the symbol equation for this reaction. हमारे पास सॉलिड जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड का जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, विच इज ZnOSO3।
और ये है आपका सॉलिड स्टेट में, प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 है इसका फॉर्मूला, HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, एक्वस देंगे आप। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला है SO2 दे देंगे। दूसरा कह रहा है एक्वस जिंक सॉल्ट एंड अ कलरलेस लिक्विड। तो अगर हम देखें, जो सॉल्ट बनेगा हमारा ZN और NO3 के दरमियान बनेगा, ZN और NO3। दूसरी जो सब्सटेंस हमारे मिलेगा यहाँ पर, जो लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड, इट मस्ट बी वाटर, ऑक्सीजन लेफ्ट एंड वाटर, तो ये हो जाएगा H2OL हो जाएगा। अब जिंक और नाइट्रेट आयन, इसके दरमियान फॉर्मूला प्रिडिक्ट करते हैं। NO3, जिंक की +2 है वैलेंसी, फिक्स वैलेंसी होती है, नाइट्राइड आयन की -1 है। इग्नोर कर दीजिए चार्जेस, अब इनके स्वैप कर दीजिए नंबर्स को, व्हाट यू विल गेट, ZnNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे आ जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस। 2 मार्क्स की इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगी, नॉइस बैलेंस। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। Carbon dioxide is a greenhouse gas that is linked to increased global warming. Describe one adverse effect of increased global warming. ग्लोबल वार्मिंग के आपको एक इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट आपको बताना है, कोई भी एक इफेक्ट। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप हो सकता है, एनी वन, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, राइज इन सी लेवल, या फिर क्लाइमेट चेंज। इनमें से कोई एक दे दीजिए। बी, डिस्क्राइब हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ये किस तरह ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्या है, ये थर्मल एनर्जी, जो सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, थर्मल हीट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला काम तो ये करता है। दूसरा क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, स्टॉप करता है थर्मल एनर्जी का लॉस इनटू स्पेस। और तीसरा काम क्या करता है ये, तीसरा काम ये करता है, यही जो थर्मल एनर्जी इसको रिफ्लेक्ट करता है, इमिट करता है बैक टू द अर्थ। इसी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो पहला पॉइंट आप दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या दे देंगे आप, रिड्यूस कर रहा है या स्टॉप कर रहा है, रिड्यूसेस और स्टॉप्स लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी। खाली यहां पर बात खत्म नहीं होगी, आपको ये बताना पड़ेगा रिड्यूस किस तरह रिड्यूस कर रहा है, कैसे रिड्यूस कर रहा है, कहां जाने से रोक रहा है, इनटू स्पेस, स्पेस में नहीं जाने दे रहा ये सब। इसी वजह से तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर क्या करेगा, ये इमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इमिशन और रिफ्लेक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी बैक टू द अर्थ।
सी, फोटोसिंथेसिस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही है एटमॉस्फेयर से। नंबर वन, राइट द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कह रहा है फोटोसिंथेसिस की, आप वर्ड इक्वेशन दे दें। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन है, हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्रोडक्ट हमें मिल रही है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। नंबर टू पे आ जाइए। डिस्क्राइब द कंडीशंस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या चाहिए? इसमें लाइट का एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट जो है एज अ कैटलिस्ट का यहाँ पे काम करती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है प्लांट को, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके लाइट एनर्जी। तो आप लिख देंगे नीड क्लोरोफिल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। अब आ जाइए पार्ट डी पे। एक्सप्लेन वन स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग कॉज बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कोई एक स्ट्रैटेजी बताइए जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है। हम मोर ट्रीज प्लांट करें, हम फॉसल फ्यूल कम इस्तेमाल करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएं, या फिर हाइड्रोजन को यूज करें। जो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल आप यूज करेंगे तो वाटर प्रोड्यूस करेगा रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को आप रोक देंगे। सो आप एनी वन फ्रॉम इसमें से लिख सकते हो, एनी वन फ्रॉम प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा ट्रीज आप प्लांट कर लें। डिक्रीज करने यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, डिक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स। और तीसरा क्या है? यूज करें आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। या फिर आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना है, और यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, क्योंकि ये वाटर प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच प्रोड्यूसेस H2O rather than CO2। CO2 रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, हमें इसका इमिशन जो है रोकना है। नंबर सेवन, chlorine is a gas at room temperature, iodine is a solid at room temperature। A sample of chlorine has a volume of 240 centimeter cube at room temperature and pressure। The pressure of the sample is increased at room temperature। Describe and explain in terms of kinetic particle theory what happens to the volume of the sample। अब आपने प्रेशर बढ़ाया है, एक सैंपल है आपके पास क्लोरीन का, उस पर आप प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, सो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर ये आपके पास गैस रेंज है, ये लेवल है, ठीक है, इनिशियल लेवल है, और आपने जब प्रेशर बढ़ाया है, तो क्या होगा? अब प्रेशर आप बढ़ा देंगे। अगर आप गौर से देखें इसको, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम स्टेट अवे डिक्रीज होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आप ये लिख दीजिए, 2 मार्क्स का, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब कह रहा है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की बेस पे आपने एक्सप्लेन करना है कि वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पार्टिकल जो है
करीब आ जाएंगे एक दूसरे, पार्टिकल्स मूव क्लोजर टू वन अनदर, पार्टिकल्स मूव क्लोजर टू वन अनदर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिक्रीजेस, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स B, when heated at atmospheric pressure, iodine changes directly into a gas without becoming a liquid. जब हीट करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, आयोडीन चेंज हो रहा है गैस स्टेट में, सॉलिड से आयोडीन एग्जिस्ट करता है, ये आयोडीन है, आयोडीन इज इन ग्रुप 7, इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, सॉलिड टू गैस. कह रहा है डिस्क्राइब द चेंजेस इन पार्टिकल सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मोशन ड्यूरिंग दिस चेंज. देखें सेपरेशन में आपके पास बात हो रही है डिस्टेंस की, पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस जो था वो क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, मूव अपार्ट, अलग हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिड से गैस स्टेट में आने वो अलग हो जाएंगे, मूव अपार्ट लिख दें स्ट्रेट अवे. यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा होगी, अरेंजमेंट में आपके पास जो है ऑर्डर टू रैंडम हो जाएगा, पहले ऑर्डर सॉलिड में ऑर्डर्ड में फॉर्म में थे, और ये रैंडम में आ जाएगा. मोशन में आपका सॉलिड स्टेट में वाइब्रेट करता है टू मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, वाइब्रेटिंग टू मूविंग इन ऑल डायरेक्शन हो जाएगा, रैंडम मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि गैस स्टेट है, सारे डायरेक्शन में ये मूव करेंगे. C, at the same temperature and pressure, the rate of diffusion of chlorine gas is greater than that of iodine gas. दोनों डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन जो है Cl2 है, आयोडीन हमारे पास I2 है. कह रहे क्यों क्लोरीन गैस की जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ग्रेटर है देन आयोडीन. अगर आप देखें आयोडीन और क्लोरीन के ऊपर, ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है, और आयोडीन का अगर आप MR निकालते हैं तो 35 को आप 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर आयोडीन यू हैव टू मल्टीप्लाई 127. Cl2 में 35.5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यू विल गेट 71 एज इट्स MR. व्हाट अबाउट आयोडीन, आयोडीन में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 127 को 2 से, व्हाट यू विल गेट 254. 254 हो जाएगा इसका मास. इसका मतलब है कि आयोडीन जो है हैवी है, उसका मास ज्यादा है. तो स्ट्रेट अवे आप रेफर कर दें MR, क्लोरीन का जो MR है, क्लोरीन हैज अ लोअर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देन आयोडीन I2. द सिंबल ऑफ एन आयोडाइडाइन इज शोन, ये सिंबल दिया हुआ है आयोडाइडाइन का, इसके ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है, माइनस चार्ज. माइनस चार्ज का मतलब इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. कंप्लीट टेबल 7.1 अबाउट दिस आयोडाइडाइन. इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है 53 है, 53 में आप ऐड कर दीजिए 1, व्हाट यू विल गेट +1, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा. न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 126, 126 माइनस 53, व्हाट यू विल गेट
126 माइनस 53, 73 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, 73 हो जाएगा। ये 54 है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 54 है। न्यूट्रॉन आपके पास आ गए 73। व्हाट अबाउट प्रोटॉन? 53 होंगे, प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Figure 8.1 is a flow diagram showing information about some organic chemical reactions। कुछ organic chemical reactions हैं दिए हुए। ए है हमारे पास, हमें नाम नहीं पता ए का क्या है। बी एस्टर है, सी प्रोपेनोइक एसिड है, डी कॉमा गैस ई एंड वाटर, फिर डी एंड गैस एफ, फिर एस्टर जी है। इंटरेस्टिंग। ए, compound A is one of the structural isomers of alcohols with molecular formula C3H8O। Number 1, state the name of compound A। compound A का आपको नाम बताना है। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और ये OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल है। सो इट मस्ट बी प्रोपेनॉल। सो हम OH की पोजीशन से इसको आप लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल होगा, ये प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। इसका नाम लिख दीजिए आप, प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। Number 2, draw the displayed formula of the other structural isomer of C3H8O that is an alcohol। अल्कोहल होना चाहिए, आप आइसोमर कह रहा है, ये बना दिए डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द आइसोमर। आपने कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ OH, चेंज द पोजीशन ऑफ OH, मिडिल में ले आते हैं हम, ये हमें आइसोमर मिल जाएगा। डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, शो एवरी बॉन्ड 1 2 3, और मैं OH शो कर देता हूँ। यहाँ पे OH आ गया, O बॉन्ड H, ये आप हाइड्रोजन शो कर देंगे, ये इसका आइसोमर हो जाएगा। अगर नाम की बात करें तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द नेम, जस्ट ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला। बी, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एस्टर बी। एस्टर बी कौन सा है? एस्टर बी का डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है मुझे। एस्टर बी, प्रोपेन 1 ऑल को आप रिएक्ट कर रहे हैं एथेनोइक एसिड से, ये एथेनोइक एसिड है। तो डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है हमें, हमारे पास एथेनोइक एसिड प्लस प्रोपेन 1 ऑल है। प्रोपेन 1 ऑल से हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, वी विल गेट प्रोपाइल फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल, एंड एथेनोइक एसिड से हमें मिल जाएगा एथेनोएट। डिस्प्ले फॉर्मूला आपको बनाना होगा प्रोपाइल एथेनोएट। प्रोपाइल, ये प्रोपाइल 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी सर्टिफाई कर लेते हैं, और ये ज्वाइन करेगा एथेनोइट, एथेनोइट आयन ये रहा, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये प्रोपाइल एथेनोइट हो जाएगा। This will be the correct displayed formula for the ester B, which is propyl ethanoate। C, draw the structural formula of propanoic acid। प्रोपेनोइक एसिड का कह रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दीजिए। प्रोपेनोइक एसिड जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2n प्लस 1 COOH। याद रखिएगा इसमें N की वैल्यू 2 होगी, नॉट 3। N2 नॉट 3। प्रोपेनोइक एसिड की वजह से आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि 3 लेंगे N की वैल्यू। द रीजन इज दैट इसमें आप COOH का कार्बन भी काउंट करते हैं इन ऑर्डर टू नेम इट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करते हैं इसके अंदर। सो ये आप N की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। ये हो जाएगा C2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, H5 COOH। अब मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला या कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म क्या होगा, CH3 डॉट CH2 डॉट COOH, ये इसका हो जाएगा
structural formula. Moving to next part. Part D. State the name and formula of compound D. Compound D का नाम बता दें. नाम और formula. Compound D. You are reacting magnesium with propanoic acid. Compound D हमें क्या मिलेगा? Compound D must be the salt of propanoic acid. Salt of propanoic acid. Magnesium salt of propanoic acid. Magnesium salt. किसका? प्रोपेनोइक एसिड. तो प्रोपेनोइक एसिड से हमें प्रोपेनोएट आयन मिल जाएगा. मैग्नीशियम सॉल्ट प्रोपेनोइक एसिड. तो हमें मिलेगा, ये इसका नाम जो होगा वो होगा मैग्नीशियम प्रोपेनोएट. मैग्नीशियम प्रोपेनोएट. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है हमें. फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने का तरीकेकार क्या है? मैग्नीशियम, वेयर इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2, +2 वैलेंसी होती है इसकी. सो मैग्नीशियम +2 वैलेंसी है. प्रोपेनोएट आयन, प्रोपेनोइक एसिड बनाया हमने, ये रहा प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोएट आयन बनाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन आप रिमूव कर देंगे. ठीक है, ये हाइड्रोजन आपने रिमूव कर देना है. प्रोपेनोएट आयन, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये रिमूव हो जाएगा. सो यू विल गेट प्रोपेनोएट आयन CH3CH2CO2 या COO. ये -1 चार्ज होता है, इग्नोर कर दें चार्जेस. तो दीज नंबर्स विल बी स्वैप्ड. स्वैप कर दीजिए नंबर्स को. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट Mg ब्रैकेट CH3CH2COO होल ट्वाइस. लिख देते हैं यहां पर Mg CH3CH2COO होल ट्वाइस. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में CH3CH2COO होल ट्वाइस और मैग्नीशियम आप Mg दे दें यहां पर. E. स्टेट द नेम ऑफ गैस E एंड गैस F. गैस E और गैस F बताइए. वेयर इज गैस E? प्रोपेनोइक एसिड को आपने मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट किया, इट्स एक्टिंग एज एन एसिड. तो जब आप एसिड से रिएक्ट करेंगे तो गैस जो आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. इट मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड. गैस F इन्होंने पूछा है, गैस F. So metal का reaction propanoic acid, magnesium is a metal. Whenever you react metal with acid, what gas you will get? You will get hydrogen gas. So आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है. यहां पे आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और ये आ जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस. Moving to next part. State the name of ester G. ester G का नाम बताइए. ester G कौन सा है? प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन है एथेनॉल के साथ. एथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड है. एथेनॉल प्लस प्रोपेनोइक एसिड. So you must be getting the alkyl group from alcohol, which is ethanol in this case. So the ester must be ethyl and propanoid must be coming from propanoic acid, ethyl propanoate. ये हो जाएगा propanoate, ethyl propanoate acid. So question number 9. Polymers are made by either an addition reaction or a condensation reaction. A. Describe the difference between addition and condensation polymerization. Addition polymerization के अंदर जो है ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स होता है और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलती है, जबकि कंडेंसेशन के अंदर हमें एक पॉलीमर मिलता है, उसके साथ एक सिंपल कंपाउंड भी मिलता है, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है और HCl है. इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं उनमें एडिशन पॉलीमर का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो मोनोमर का
जो है वो सेम होगा, जबकि कंडेंसेशन में ऐसा नहीं है। एडिशन पॉलीमर के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूज होता है, जबकि कंडेंसेशन के अंदर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यूज हो रहे होते हैं। तो हम इनमें से कोई सा दो पॉइंट लिख सकते हैं, एनी टू फ्रॉम, ये एडिशन का आ जाएगा यहाँ पर, और ये कंडेंसेशन का आ जाएगा। इसमें आप लिखते हैं ज्वाइनिंग, एडिशन में ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स गिव सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल पॉलीमर, पॉलीमर हमें मिलता है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी इन्वॉल्व ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स टू गिव ए पॉलीमर एंड ए सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें वाटर भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है। और क्या पॉइंट दे सकते हैं? दूसरा पॉइंट ये है कि एडिशन पॉलीमर का सेम मॉलिक्यूलर हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज द मोनोमर, जबकि यहाँ पर डज नॉट हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। एज द मोनोमर। लास्ट पॉइंट जो है एडिशन के अंदर, मोनोमर यूजेस अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मोनोमर्स uses a carbon double bond carbon involve monomers with two functional groups. Part B, PET is a condensation polymer. Name the type of the linkage that bonds the repeat units to one another in PET. PET is polyester, पॉलीइथिलीन है, पॉलीइथिलीन और पॉलीएस्टर। उसके अंदर जो लिंकेज आएगी वो एस्टर लिंकेज आ जाएगी। स्ट्रेट अप आप लिख दीजिए एस्टर। C, a polymer contains 47.1% carbon, 6.5% hydrogen, and 46.4% chlorine by mass. Calculate the empirical formula of this polymer. Steps हम फॉलो करेंगे। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन हमारे पास है 47.1%, हाइड्रोजन हमारे पास है 6.5%, क्लोरीन हमारे पास है 46.4%। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का यार देख लेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो यहाँ पर आ गया 12, डिवाइड करने के 12 से। हाइड्रोजन में 6.5 डिवाइड बाई 1, क्लोरीन 46.4 डिवाइडेड बाई 35.5। सो 47.1 divided by 12, we will get 3.925, 3.925, जबकि हाइड्रोजन में हमें 6.5 ही मिलेगा। क्लोरीन 46.4 divided by 35.5, 1.307, 1.307। अब इसमें जो लीस्ट कंबाइनिंग रेशियो है या लीस्ट मोल्स हैं, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 1.307।
1.307. कार्बन 3.925 डिवाइडेड बाय 1.307, 3 आ जाएगी इसके अंदर। हाइड्रोजन 6.5 डिवाइडेड बाय 1.307, 4.97। 4.97 का मतलब है इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 5, 5 आ जाएगा। क्लोरीन में 1 आ जाएगा। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा C3H5Cl। लास्ट क्वेश्चन डी, प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, डिस्क्राइब 2 एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय प्लास्टिक। कोई से 2 लिख सकते हैं आप इसमें से, एनी 2 फ्रॉम। लैंडफिल्स है, उसके अलावा क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक्स इन ओशन। और क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस ऑन बर्निंग। जब इसको आप बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होगी। दैट्स ऑल। Thanks for watching. Press like and share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.